What are you? I'm a cockroach. Hmm? I'm a cockroach. You're a cockroach? Yeah. Oh wow. Yeah. Oh, cockroach is tired. So what now? Cat. You want to be a cat? Okay. Meow. 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 To be a dinosaur. No. No? Why? No. Why? I'm gonna carry dinosaurs here. Dinosaurs are scary? Huh? You're scared of dinosaurs? Yeah. Tell me something about dinosaurs that you like. The chocolate dinosaur. You like Chota dinosaur? Huh? Okay. Where is Zeph? Yes, we're taking a little dinosaur. Hmm. Do you love Zeph? No, I don't love to. But why? It doesn't sleep. Hmm? Babu go fast asleep. Babu's fast asleep? Yeah. But I'm asking you, do you love Zeph? No, You don't love Zeph? don't like it. Why? Cutting. It's cutting time. It's cutting time? Yeah. Okay. Come. Come, I'll cut your finger. Come. No. Come. No. You don't listen now. Come. No. Give me your hand. Give me the scissors. No. Hello, good morning. Welcome Welcome back to Hello. our channel. Say something. Say something. पूछो कैसे हो? पूछे कैसे हो? ऊपर देख के पूछो कैसे हो आप लोग? कैसे आप हो? प्लीज मुझे बताओ प्लीज बताओ. कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं? The video पसंद है. Look up and say ना. Are you liking my videos? I like the video. Please comment and tell me. Please comment and tell me. Make a heart. I love you all. I love you all. Thank you for subscribing my channel. And thank you for my channel. Bye bye. Bye bye. See you soon. See you soon. Bye bye. Hello everyone. Good morning. Welcome back to our channel. No. सुबह हो गई है. No. Why? Goodbye. Why bye? Goodbye. We have to talk a little bit, no? No. Let's talk. सुबह हो गई है और Mama, they sing the Bible songs. They sing the Bible songs. Want to sing bye bye song? Okay, sing. Bye. Sorry, मेरा गला खराब है. Come on, sing. Bye bye friends. Bye. Sing Bye. loudly. Bye. Bye. Friends. Bye. Bye. Friends. Bye. Bye. Friends. We'll see you again. पर ये सॉन्ग तो हमको एंड में गाना है ना जाना. Yeah. उसको तो एंड में गाएंगे ना. Like the green flag and candles. Green flag and candles. तो देखिए सफाई हो गई है और मेरे कपड़े भी सूखने वाले होंगे. ये मैंने कल धोए थे. और तो आप सोच रहे होंगे कि मैं टी शर्ट में क्यों घूम रही हूँ. तो मैं बस नहाने जाने वाली हूँ और रोजाना को मैंने दे दिया है लंच. वो अपना लंच कर रही है अंदर बेडरूम में. और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया. वैसे तो मैं 11-12 बजे ही मैं नहा लेती हूँ. आज लाइट नहीं थी और
Hello. Hello, come. Hello, what's my candle? तो लेट हो गया है और उन्होंने अंधेरे में ही काम किया और वो जा चुकी हैं और बस गीजर ऑन कर दिया था, पानी गर्म हो चुका होगा और बस नहाते हैं थोड़ी देर में और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और कुछ बोलना है? और कुछ बोलते? और कुछ बोलना है? और कुछ बोले? Did you finish your food? No. Mm-hmm. I finished my food. You finished your food? Are you a good girl? Wait, no, not good girl anymore. You're not good girl anymore? वो ज़रा भाग गई अंदर। हाँ। Okay, Hosanna, it's not dinner, it's lunch. Hosanna अपने खाने को कह रही है, मैं अपना डिनर फिनिश करने जा रही हूँ। कम आ जाओ, इधर खा लो। Mama, the food again. What? Again. Again what? Again. Okay, go eat. No. Then, oops. Sorry. Sorry. फोन आ रहा है। Daddy is calling. Daddy coming. Dada. रोशन का फोन आया था और मुझसे मिस हो गया है और अब मैं आ गया। हेलो। चलो मैं नहा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। इस गंदी बच्चे का मैं क्या करूँ? चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, नहा चुकी हूँ और आप ये मेरे वीडियो में जो वाइट लाइट आप देखते हैं तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करना। मेरे घर में थोड़ी सी लाइट्स की प्रॉब्लम है और पीछे हमारा वीडियो चल रहा है। बस अब मैं लंच करूँगी और आपसे एक बात भी करनी है, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपसे लंच करके मिलती हूँ। तो ये है मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। इसमें IgE लेवल आया है 44.2। पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखिए जो रिपोर्ट मैंने अभी आपको दिखाई, वो रिपोर्ट कल मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और ये एलर्जी टेस्ट करवाया है मैंने और इसमें आया है, वैल्यू आया है 44.2 समथिंग आया है। और आपको मुझे ये बताना था कि जब होज़ाना पैदा हुई थी तो मैं उस टाइम पे ना अपना ध्यान नहीं रख पाती थी और उस वजह से मुझे कुछ इन्फेक्शन हो गया था और मैं डॉक्टर के पास भी टाइम से नहीं गई। और जब फाइनली मैंने सोचा मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर ने मुझे बहुत डांट लगाई और बोला कि ये चीज़ आपकी ट्रीट हो सकती थी अगर आप टाइम से आते, और अगर अभी आपने बहुत लेट कर दिया है आपको कराना पड़ेगा एलर्जी टेस्ट। तो मैंने उस टाइम पे एलर्जी टेस्ट कराया था तो मेरा आया था 345 वैल्यू समथिंग कुछ आया था। दैट डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके ब्लड में 3 टाइम्स जो एलर्जी है वो बढ़ी हुई है। और फिर मैं कुछ भी खाती पीती थी तो मेरे को ना स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, एलर्जी हो जाती थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप टोटल एलर्जी टेस्ट करवा लो अपना। तो मैंने अपना एलर्जी टेस्ट करवाया और उसमें बहुत सारी चीज़ों में एलर्जी निकली। यस बेटा, बहुत सारी चीज़ों में एलर्जी निकली, मतलब बहुत सारे खाने पीने में एलर्जी निकली। रोजाना प्लीज लेट मी टॉक ना बेटा। मतलब जो नॉर्मल चीज़ें मैं आज तक जो खा पी रही थी उसमें भी एलर्जी निकला, मतलब तो मैं कुछ भी खाऊंगी मुझे एलर्जी हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि या तो आप 2 तरीके हैं इसके, या तो आप परहेज करो,
और परहेज में क्या है कि आपको जो जो चीज़ उसमें निकली है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड सेकेंड है कि अगर आप खाते हो तो फिर आप मेडिसिन लो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और करीब 1 साल से मैं ऐसी परहेज वाली ही लाइफ मैं अपना लीड कर रही थी। कुछ खा पी नहीं रही थी, बाहर का कुछ भी, सब कुछ मना था। तो व्हाट इज दिस, व्हाट फेस यू आर मेकिंग, छी। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मुझे होम्योपैथिक अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो मैंने सर्च किया और मुझे अपने एरिया के पास में एक होम्योपैथिक डॉक्टर मिल गए। फिर मैं गई उनके पास, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि ये तो बहुत नॉर्मल सा आपका एलर्जी बढ़ा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा एलर्जी जिनका बढ़ा होता है वो लोग भी हमारे पास आते हैं और उनका भी उन्होंने ठीक किया है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि चलो फाइनली मैं अपना लाइफ नॉर्मल अब लीड कर सकती हूँ। तो मैंने जो उन्होंने मुझे दवाई दी मैंने उसको फॉलो किया और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एलर्जी बहुत हद तक ठीक हो गया। और मैं फिर से एक महीने का मुझे डोज मिला था और मैं फिर से अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गई, मैं खाने पीने लग गई। एंड लेकिन क्या था, थोड़ा सा ठीक हुआ तो मुझे लगा चलो छोड़ो, अब डॉक्टर के पास क्या जाना है। और मैं डॉक्टर के पास दोबारा विजिट के लिए नहीं गई। लेकिन फिर भी हल्का हल्का मुझे एलर्जी होता था, लेकिन इतना नहीं था। मतलब परेशानी वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, इतना था कि मैं इग्नोर कर सकती थी। लेकिन फाइनली क्या हो रहा है अब कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है टेस्ट कराओ, अपना ब्लड टेस्ट, और उसमें देखेंगे हम कि कितना एलर्जी अभी भी आपके ब्लड में बचा है, और तो उस हिसाब से हम आपको मेडिसिन देंगे। तो फाइनली वो मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया कल और उसकी रिपोर्ट आ गई जो मैंने आपको दिखाई। तो मेरा 345 समथिंग वैल्यू था, उससे तो बहुत ही कम आए हैं अभी 44। तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो अब मुझे जाना है डॉक्टर के पास, तो मैं जाऊँगी कल और ये रिपोर्ट हम दिखाएंगे डॉक्टर को और फिर देखते हैं कि मुझे और कितनी मेडिसिन मिलती है। और फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस एलर्जी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये बात मुझे आपको शेयर करनी थी। और एक और बात, प्लीज़ अगर आपको कुछ होता है तो आप वेट मत करो किसी चीज़ का। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है, तो आप प्लीज़ तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। मुझसे ये गलती हो गई कि मुझे उसी टाइम जाना चाहिए था, तो मेरा इतना बढ़ता नहीं है चीज़, और 1 या 2 डोज से ही मेरा वो जो एलर्जी है वो ठीक हो जाता। लेकिन मेरी अपनी गलती की वजह से मैंने उसको इतना बढ़ा लिया, क्योंकि मैंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम होजाना बहुत छोटी थी और मेरा सारा ध्यान होजाना के ऊपर होता था। मैंने अपनी केयर नहीं करी। तो उस दिन के बाद से मुझे एक सीख तो मिल गई कि मुझे लापरवाही नहीं करनी, और अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ये ट्रीटमेंट करानी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपने अपने आप से रिलेटेड कोई लापरवाही मत करिए। और बाकी चीज़ें भी देखिए, अपना घर देखिए, बच्चे देखिए, लेकिन अपने आप से भी प्यार करिए। तो बस यही बात मुझे करनी थी। और चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। देखो मुझे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट क्या मिला। आ जाओ वीडियो में। अच्छा, ये अभी अभी जस्ट मिला है मुझे वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ जो मेरा बच्चा पा कर लो, पा खुशी पा, इधर पा, किसी किस? मेरे को थैंक यू। I got a new tripod. ये वाओ। और तुमने बताया नहीं कहाँ से लिया ट्राइपॉड, बता दो सबको, क्योंकि मेरे जहाँ तक मुझे पता है तो ऑनलाइन ही मिलता है। अच्छा, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है? मतलब मैंने तो लोगों को ऑनलाइन ही खरीदते देखा है ना। सर्च करना पड़ता है इसके लिए। हाँ तो क्या सर्च की, कहाँ से मिला तुम्हें? और ये तो बहुत ही लेट है, वैलेंटाइंस डे तो कब का चला गया। लगता है वैलेंटाइंस डे के बाद तुम्हें रियलाइज हुआ वो भैया कुछ दे देता हूँ, है ना। अच्छा, ऐसा ना होता है। फिर कब था ये? वेडनेसडे ना, जिस दिन हम लोग चर्च गए थे। जिस दिन आज वेडनेसडे था उसी दिन। हाँ तो जब मैं लेट नहीं हो गया था थोड़ा सा, तो क्यों हुआ था कभी सोचा नहीं?
अभी कुछ टाइम से तो तुम ऐसे ही लेट हो रहे हो, अब हर चीज सोचने लग जाओ तो हो गया। अरे कुछ नहीं यार, मैंने ऐसे ही सोचा था देने का कुछ। अच्छा, बर्थडे में तो दिया नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है। हमारी शादी को कितने साल हो गए? 10 साल ना? ये भी गलत है। 10 साल हुए ना? 10 साल हो गए हमारी शादी को, और इन 10 सालों में ऐसा एक दिन नहीं गया हो, मतलब साल में कोई मेरा बर्थडे का ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब मुझे गिफ्ट ना मिला हो। लेकिन इस साल ऐसा हो गया है, इस साल मुझे मेरे बर्थडे में गिफ्ट नहीं मिला है। अच्छा, ये मैं बहुत ही ज्यादा क्या बोलूं, बहुत ज्यादा अपसेट हूँ इस बात से। अच्छा, मतलब तुमने अभी जो हम लोग कुछ करने वाले हैं वो गिफ्ट नहीं, तुमने वो कहते हैं ना कि ये चीज चलती आ रही है, मतलब वो चीज तुमने तोड़ दी। थोड़ी कुछ नहीं है। हाँ, बाकी मुझे सारे बोलते थे यार हमें तो कुछ नहीं मिलता, हमें तो कुछ नहीं मिलता, तो मैं तो बड़ा प्राउडली बोलती थी यार मेरे को देख लो, बर्थडे और एक एनिवर्सरी में फिक्स्ड मतलब गिफ्ट तो मिलना ही मिलना है, बेशक पूरे साल कभी कुछ मिले ना मिले। हाँ तो ठीक है ना, कॉम्पनसेशन हो हाँ, गया ना कि अभी आ गया, मिल गया। अच्छा, वैलेंटाइंस का तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ तो कॉम्पनसेट हो गया ना, है ना बेटा? है ना? क्या है ना? हाँ जी। अच्छा बताओ, तुम भटक रहे हो बात से, कहाँ तुमको मिला ट्राइपॉड? पहले मैं गया उधर DIY जनकपुरी, वहां पे मुझे कुछ मिला नहीं। DIY जनकपुरी, अच्छा। यस, फिर मैं वापस आया इधर अपने महावीर क्लब में। यहाँ का DIY बंद। अच्छा, यहाँ तो अभी ओपनिंग भी नहीं हुआ है, यहाँ पे महावीर क्लब में एक नया DIY खुला है जो अभी शायद ओपन नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैं वापस गया जहाँ मैं पहले गया था DIY, उसके बगल में था क्रोमा। क्रोमा में घुसा, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था, वो रोटेट नहीं हो रहा था। लेकिन एक बात बताओ, पहले तुमने सोचा कैसे कि ट्राइपॉड देना चाहिए मुझे? क्योंकि याद है तुमने मुझे बोला था कि अरे अभी तो स्टार्टिंग है, व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया, अभी ऐसे ही बनाओ। इसका आंसर तुमको खुद मालूम है। जबकि मैं लेना चाहती थी, ट्राइपॉड दिलाओ दो, जबकि मैं लेना चाहती थी, तो बस लेकिन मिल गया ना। हाँ वो तो चलो अच्छी बात है, जब मैंने अपने आप को कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया कि नहीं यार जब स्टार्ट किया है तो अभी ट्राइपॉड की क्या जरूरत है। हाँ फिर इसी को तो सरप्राइज कहते हैं। हाँ तो चलो बहुत अच्छा है, वो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर मैं वापस गया उधर क्रोमा में। क्रोमा में मुझे अच्छा लगा था, उसका क्वालिटी भी अच्छा था, और लेकिन जो बंदा दिखा रहा था ना उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं उसको पूछा कि ये भाई ये क्या रोटेट हो जाएगा या नहीं होगा, तो उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है या नहीं होता। और मैं खरीदने ही वाला था, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, मैंने बोला पैक कर दो। फिर ऑनलाइन तो वैसे इसका प्राइस आई थिंक 1200 थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी, क्रोमा में थोड़ा एक्सपेंसिव था। लेकिन उसने बोला कि मुझे नहीं पता इस बारे में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या हिसाब किताब है। तो मैं अनपैक, मुझे नहीं चाहिए भाई, ले जाऊंगा घूमेगा नहीं, फिर क्या फायदा उस चीज का। फिर मैंने एक और शॉप देखी, वो नहीं बताऊंगा कहाँ पे है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रीजनेबल रेट है मुझे चीज मिला। उसको भी मैंने बोला था कि भैया मुझे ब्लैक में चाहिए, लेकिन ब्लैक मिला नहीं मुझे, और लेट भी हो रहा था गिफ्ट के लिए, तो मैं वही ले आया ब्लू वाला। चलो नॉट बैड, मुझे तो अच्छा और अच्छा रीजनेबल प्राइस में मिला है। अच्छा, प्राइस नहीं बताओ? प्राइस नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है गाइस, प्राइस नहीं पूछते हैं क्योंकि गिफ्ट है। फिर भी अगर पता चल जाता तो मेरे दिमाग में मैं कैलकुलेशन तो कर लेती ना, पता होना चाहिए ना कि कितने की चीज है, पता होना चाहिए। चलो कोई। और मजे की बात ये था, मेरे पैसे बच गए। मतलब जो क्रोमा वाला था ना वो एग्जैक्टली सेम था। अच्छा यही चीज थी, उसको पता ही नहीं कि वर्टिकल होता है या नहीं होता है। तो मुझे डिफरेंस ऑलमोस्ट 400 से 500 रुपए का डिफरेंस मिल गया। अगर क्रोमा से लेता तो शायद मेरे को 500 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ते। अच्छा, और ये मुझे बाहर से मिला, ये मुझे पड़ा है 700 का। नॉट बैड यार, बहुत अच्छा प्राइस मिला। नहीं अच्छा प्राइस है, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। ये क्वालिटी मैंने भी देखी है, क्वालिटी काफी अच्छी लगी है। चलो गुड, नाइस, थैंक यू। गोभी बनानी है। हाँ काट तो दो। चलो यार मुझे ना चलाओ सब्जी काटनी, एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे सब्जी काटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझसे सारे काम करवा लो लेकिन मैं सब्जी नहीं काट सकती।
तो डिनर में बना था गोभी आलू की सब्ज़ी और हमने डिनर कर लिया था। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।